Good evening, friends. Once again, welcome to you in this second day master series on Companies Act. And today's important topic is deposits and loan under Companies Act 2013. We have with us our eminent speaker, expert, elder brother, CS Deepak Sharma ji. Deepak ji, welcome to you on this platform, Team Casa, once again. And welcome to each participant for this refresher course. And I know everybody will enjoy the today session as well. और जितनी भी क्वेरी हैं आपकी इससे रिलेटेड यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन आस्क एनी टाइम इन बिटवीन और यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स. सो आज जब सेशन कंप्लीट हो तो हमारी कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोन्स और डिपॉजिट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं दे ऑल गेट क्लियर फ्रॉम दिस सेशन. एंड आवर panelist CSC Asha Sharma ji is also here. So welcome to you once again. I request Deepak sir to take up the technical session. Over to you, sir. Thank you, Sumit sir, and all the distinguished professionals who are here actually with me to take the benefit of this session, which has been just designed by CASA. And I appreciate the continuous efforts of CASA, which has not only given the opportunity to learn, but at the same time to deliver as well. Why? Because until unless you tend to learn, you can't deliver actually. So this is the objective of this session. And I will not make this session as a very flashy one or very easy one. I will make it more exhaustive, right? So that you can have a fair amount of understanding what section 185 is, what section 186 is, what are the repercussions, what are the reporting systems, what the regulators say, what are the historic background, is there any historical judgment on this actually subject. 31st March is approaching, so many of us are on the verge of closing our balance sheets as well. Is there any skipping actually as far as the corporate actions are concerned? Whether we should go back to the board, why? Because we have enough time to organize our one more board meeting in the last week of March and take this matter on record so that we can just file all the blanket approvals and other blanket permissions with the MCA. Though MCA is playing with us, what I've said that the MCA is playing with us now, but we have to play with the regulator. Why, how, and why? Because whenever there is a provision, there is a specific provision. But yes, the understanding of that provision or maybe the interrelated aspects of those sections, this becomes very important. Why Sumit ji has designed this section 185 and 186 combination? Because they are more complementary to each other actually. They are just related to each other actually, these sections, because they are confusing actually at the time of when we take some decision with regard to loans, advances, investment, to whom, who are the parties actually, what is the time, is there any existing permission or not. So these parameters will definitely let you in a bloom where you will file maybe certain wrong information with the regulator. Now, as far as your balance sheet is concerned, because you all are going to audit your balance sheet, the forthcoming balance sheets. So is there any change in the reporting or in the historic data? Should I take the back seat and have a total review of my two particular sections actually? So with this background, I think all of us should give all focus on understanding the fundamental and basic understanding of these two sections actually. I will take you through the reporting, regulatory aspects, the understanding and the fundamental aspects. Therefore, after 1.5 hours of this session, I think majority of your queries in your mind only should be solved actually. You need not to ask any question whatsoever. Even if there is a question, so after every half an hour, we may go back to the audience and may require or maybe invite some other questions actually. So with this actually, I should come to my PowerPoint presentation where the loans and guarantees and investments shall be the subject matter, and how it will impact your forthcoming board meeting or general meeting definitely are going to be are important and crucial aspects as far as all of us are concerned. So before that, there is a
disclaimer always, yes, but at the same time, I would not say that I'm not taking the responsibility. The contents are freezed as per the latest amendments and circulars and understanding of law actually with regard to these sections, my dear friends. So you all need to have a clear-cut understanding about these two sections. Read with rules and all the notification circulars which have been notified by the Ministry of Corporate Affairs. So here we go about these two sections. So are you able to see the change in the slides? Can you confirm it? अभी फर्स्ट स्लाइड आ रही है सर. It means when I enlarge the slide slide is not changing, right? No, not now. So I have to be in this mode only. Now it is changed to third slide actually. I think there's a always a problem whenever you enlarge your screen, you're not able to just give that. Anyways, so is slide show mode में कर दें, I think. Slide show में ही किया है मैंने आशा जी, but वो I think but still it is not in slideshow mode. ये आ गया. Is it changed now? We are on third slide right now. अभी चेंज नहीं हुआ है. No. तो मैं उसी पर चलता हूँ, फिर उसी मोड पर. आई थिंक मुझे इस मोड पर आना पड़ेगा बिकॉज मैं स्लाइड शो ही कर रहा हूँ, बट आई थिंक आ नहीं रहा है वो. एनीवे, simultaneously section 185, which is applicable to all companies, be it a private or a public company. So applicability becomes very important to understand whether it is applicable to which category of company. I will not take you to the Companies Act 1956 when its sister section 295 was not that severe, whereas section 185 is. So this section primarily deals with the subject of a person, that is a company, to whom company cannot give loan actually, right? Means company cannot give a loan to a person, maybe an individual person, a legal person. It cannot give any loan actually. And why and how? Just to have those corporate governance practices in mind and related party transactions in mind, this particular section has become harsh as far as Companies Act 2013 is concerned. And why harsh? Because it is applicable on both the categories, that is private and public. Section 186 is also of the same nature, where under the provisions of Companies Act 1956, the erstwhile pre-2013 era, the investment and loans related section was not applicable on private company, but 2013 has provided this particular section to be applicable on both private and public company. So this particular section lists the exceptions and specify the limits up to which a company can give loan, make investments, and give guarantees actually. So here, these two sections will go in consonance with each other. Therefore, it is necessary to have a brief idea about section 186 when you are studying or reading section 185. At the same time, whenever you are studying or reading or maybe applying section 186 provisions, you have to keep in mind section 185, read with section 188 as well. So today's focus is on section 185 and 186. This is nothing but the loan to director. Recall the days when a series of companies, or group companies, or the categories of shell companies was just coined by the Ministry of Corporate Affairs. It means there was a long chain where these financial transactions were just moving from one corner to another, and the regulator was not in a position to just determine where the funds have gone. And this is where the private company becomes the target of the parliament, and section 185 became applicable on the private companies as well. So when you say loan to directors, we have to understand what is loan and who are the directors. Whether any exception is there to the directors. Why? Because directors are categorized into many definitions and under categorization like executive, non-executive, professionals, independent directors, maybe whole-time directors, managing director,
maybe additional directors, alternate director, casual vacancies, directors. So these various types of directors are there. So whether loan to every type of director is covered under that, and what is loan at all? Whether loan includes the implication or definition of an advance, which is in the nature of advance, maybe some sort of a money which has been given by the company to its director to just, have some expenditure which he is going to incur when he is just moving to other country or maybe to other part of the country in the best interest of a, company's business, or maybe in the ordinary course of business. So whenever you have these questions in mind, you will definitely go back to the books and read section 185. It means there must be some restrictions. Section 185 is nothing but is relating to the restrictions. And what are those restrictions? Why? Because you have to look at this section with two eyes. Number one, the restriction. But number two, this section has given a vision to those category of transactions which were necessary for the purpose of stakeholders. And when this section was, notified way back in 2013, when this Companies Act 2013 was promulgated. So at that point of time, till the, notification, the major notification came into picture, that is June 2015, the stakeholders were just crying. They were crying in a way that why 100% stop is there? Why 360-degree, stop is there as far as these transactions are concerned? Maybe any sort of money flow from the company pocket to the director pocket. So those restrictions which are in restrictive mode, 100% you cannot do, actually, these are as per the basic understanding of the section. Now, what are those actually? So restrictions on providing loan to a director or to a person who is connected with the director. It means we talk about two categories of persons. One is director himself or herself, and another category is about a person who is somewhere connected with you as a director, as a person, maybe as a partner, as a relative actually. So we will try to understand first the fundamental, of the section. Then we will go back to the technical issues related to this particular section. Now, subsection 1 is very clear about the provisions actually, and it says simply that section 185 provides that no company means either a private company or a public company. It does not implies LLP. So keep in mind, you have to keep in mind the LLP is not defined over here. OPC is not defined here. Only the private company or a public company. So any company or any category of company will not directly or indirectly. These are two very specific coin words. Directly means when you are able to just, grab the financial figure directly from the books of accounts of the company. And you can determine that this amount is directly go to the pocket of the director. Indirectly means you have searched and you have coined via media by whom you can just, divert your money from the company's pocket to the other's pocket, but ultimately it goes to your pocket. So this is indirectly. So no company shall directly or indirectly advance any loan. First of all, advance any loan represented by a book debt. Now, the second clause, which is B clause, any loan which is represented by a book debt, we have to understand what is book debt as per the books of accounts you maintain actually, and how section 185 will be just affected or impacted. No guarantee shall be provided directly or indirectly, and you will not provide any security in connection with any loan. It means you will not provide any direct loan. You will not book any book debt entry. You will not provide any guarantee. And you will also not provide any security in connection with any loan taken by whom? Taken by any director, means any director of your company takes, say, for example, housing loan and you give a guarantee. How? Maybe
he takes any commercial loan and you give a guarantee, then ultimately the beneficiary is your director and it will be amounted as loan to director. Therefore, it is restricted. You can't do this. Even if you take the approval, you will just see and you will observe in the later slides that despite of approval, you can't do those transactions actually. So if any security in connection with any loan which is taken by any director of a company or of a company which is a holding company, it means the subject matter is a company A and then its holding company B, you cannot provide any sort of security with regard to the loan taken by your holding company and any partner or relative of any such director. If that person is a partner in any particular partnership firm, so any partner and his relative also. See the trap. The trap is very long. You cannot go beyond that shell actually. You are trapped actually. So you have to determine those relationships. Any firm means here the partnership firm. It does not mean the limited liability partnership, but a partnership firm in which any such director, which is the subject matter or relative, is a partner. तो देखिए 5 तरीके की ट्रांजैक्शन आपके पास आ गई और कितनी आसानी से आप ये समझ पाएंगे कि अगर कोई डायरेक्ट लोन दिया है, बुक डेप्ट आपने एंट्री बुक की है बुक्स के अंदर, आपने कोई सिक्योरिटी या गारंटी दी है, राइट, एंड सिक्योरिटी दी है इन कनेक्शन विद द लोन which has been given to the company by the company to a director in an indirect mode actually. Now, as far as book debt is concerned, book debt which is arising in the ordinary course of business and which is due to or growing to the proprietor of that business, such debt would or could in the ordinary course of such a business be entered in the well-kept books of accounts relating to that business. Now, this debt can properly be called a book debt, whether it is in fact entered in the books or the business or not. This is something related to the credit of the transactions or the financial figure actually to be booked in the balance sheet actually. So book debt को भी हम आगे समझेंगे. यहाँ तो कुछ कॉइन वर्ड्स आपको यहाँ मिल गए हैं जो आपको समझने सेक्शन 185 में कि आप कर क्या नहीं सकते. ये रेस्ट्रिक्टिव मोड है. मैंने ऊपर रेड से लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप स्लाइड में देखें तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज. चलिए इसको दोबारा समझते हैं. कोई भी डायरेक्टर ऑफ ए लैंडिंग कंपनी, अब जरा आपने माइंड में प्रिज्यूम कर लीजिए, मैंने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट वाइज कर लीजिए कि कंपनी ए इज ए लैंडिंग कंपनी और कंपनी बी इज अ borrower company. So any director of a lending company, any relative of director of such director, now director of a company which is its holding company, relationship गई है बैक में holding company पर. Any firm in which such director is a partner or relative is a partner. It means partner का relative भी partner, वो भी cover हो गया यहाँ पर, और any partner of such director, ये थर्ड एक्सटेंडेड आर्म हो गई. ये 5 कैटेगरीज आपकी स्टक हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टिव हो जाती हैं. नाउ अगर आप क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को देखें या आप 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को देखें तो ये डायरेक्ट लिंक है. इट कवर्स द डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव्स टू. बट अगर आप 3, 4 एंड 5 को देखें तो इट इंक्लूड्स द डायरेक्टर ओनली हिमसेल्फ बट नॉट हिज रिलेटिव्स. सो कोई भी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां पर ये डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ए फॉरेन कंपनी. हम सब लोगों को पता है कि बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी एनलार्ज है. कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, बट बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ए फॉरेन कंपनी एंड इंक्लूड्स ए कंपनी आल्सो incorporated in India and incorporated outside India. So it covers the body corporate where the managing director or board of directors or managers, they are accustomed to act in accordance with direction of board of directors of a lending company. It means borrowing company is somewhere else, maybe relation wise कहीं बाहर बैठी हुई है foreign company, और आप lending company के perspective में director की relationship को ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिल गई है. Now a body corporate does not include corporate society
but it includes a foreign company. ये आपके लिए clarification के लिए, इसको दोबारा से समझें. 5 clauses directly, restrictive mode है section 185 के starting का subsection 1 के अंदर. 5 restrictions लगाई गई हैं, relationship में directly लगाई गई हैं director के, और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को इनडायरेक्टली वहां इंट्रोड्यूस किया गया, और वहां पर प्राइवेट कंपनी को ढूंढा गया जहां पर आपका डायरेक्टर है या कोई और डायरेक्टर है, या ऐसी पार्टनरशिप फर्म जहां पर आपका डायरेक्टर पार्टनर है या पार्टनर का कोई रिलेटिव है जो कि पार्टनर भी है. तो इन 5 को आपको बहुत अच्छे से बेसिक दिमाग में रखना पड़ेगा whenever you are analyzing any balance sheet or a transaction, because मैनेजमेंट के साथ आपका बहुत बार ये आर्ग्यूमेंट होता है कि ये रिलेटिव्स आपकी कैटेगरी में आते हैं और ये रिलेशंस नहीं आते हैं. चलिए, अगर वो आपसे कोई भी आर्ग्यूमेंट करें तो आपको इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं जाना है. अगर रिलेटिव की बात होती है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 79, राइट, ये आपका रिलेटिव की डेफिनेशन को बताता है. बहुत आसान है. 8 किस्म की जो डायरेक्ट रिलेशनशिप दी हुई है उनको आप याद कर लीजिए, कभी भी साथ में रख लीजिए. सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 को खोल के रख लीजिए अपने सामने और अपने क्लाइंट को समझाइए कि देखिए रिलेटिव कौन है. विद रेफरेंस टू एनी पर्सन और सब्जेक्ट मैटर, इट मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर पर्सन in what capacity? In a capacity if they are the members of a HUF, that is Hindu undivided family. If they are husband and wife, they are spouse to each other, they are not divorced, the marriage must be going on. One person is related to the other in such a manner as may be prescribed. जब लॉ ने कहा as may be prescribed, so rule 4 has come into picture. Section 2 subsection 77 को रिलेट करते हुए, और उसने 8 रिलेटिव की डेफिनेशंस दे दी. फादर, प्रोवाइडेड दैट द टर्म फादर इंक्लूड्स स्टेप फादर. मदर किसी वजह से डाइवोर्स हुई या कुछ और वजह हुई, रीमैरी की, और आपको जो नए फादर मिले वो स्टेप फादर. मदर इंक्लूड्स स्टेप मदर. सन इंक्लूड्स स्टेप सन. सन्स वाइफ, डॉटर and daughter's husband. Brother also includes step brother. Step को भी समझना बहुत जरूरी है. Sister includes step sister. तो देखिए 5 किस्म की जो डेफिनेशंस हैं, फादर के साथ स्टेप फादर, मदर के साथ स्टेप मदर, सन के साथ स्टेप सन, ब्रदर के साथ स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर के साथ स्टेप सिस्टर. ये एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारी रिलेशंस की. तो अगर हम ऐसे लगाएं तो 8 and 5 13 रिलेशंस हो जाती है मेरे हिसाब से, राइट. बट ये क्योंकि एक बार में एक ही हो सकती है अगर फादर की बात कर रहे हैं, एक ही बार में एक सकती है जब अगर मदर की बात कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट सन? सन तो आपका रियल भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है. ब्रदर रियल भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है. सिस्टर रियल भी हो सकती है, स्टेप भी हो सकती है. तो दैट वे यू हैव टू जस्ट सी those categories actually, right? So relative की definitions जब भी आप section 185 को देखेंगे तो आप, I'm just going back actually, तो आपको यहां पर जो सेकंड कॉलम है जहां पे रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर दिखाई देता है, आपको वहां इंप्लाई करनी है. जहां पर आपको नंबर 4 में एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर इज ए पार्टनर और रिलेटिव इज ए पार्टनर, तो रिलेटिव कौन है जो अभी आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में पढ़ने को मिला. नाउ कुछ इंटरप्रिटेशन सीखते हैं इससे. ये कुछ जो ट्रांजेक्शंस आई, वेदर दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 185. इसमें कुछ आपकी एंट्रीज होंगी जो कि मैं कह सकता हूं कि कुछ लोन्स हैं which are represented by book debts in the ordinary course of business. Now, whenever you say book debt, so it's a money that a customer owes to a company for a good or service purchased actually, maybe at agreed terms, but on credit. It means book debt may be called as money that a customer owes to a company for a goods or service purchased on credit. Now, any debit in the books of accounts for any sale or service provided to a recipient may be called as trade debt, which arises in the ordinary course of business of such entity. Now, how should I understand? Deepak ji,
Yeah. दीपक जी, सॉरी टू इंटरप्ट, स्लाइड विजिबल नहीं है। स्लाइड विजिबल नहीं है अभी? नहीं। स्लाइड हुई है, कुछ प्रॉब्लम है सर, दोबारा रिमूव करके सर दोबारा लगा लीजिए। अब आ गई है? अभी विजिबल है सर? यस 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 विजिबल है? यस यस परफेक्ट सर। Perfectly, perfectly. So यहाँ पर whenever restrictions are there with with respect to the understanding of trade debts, तो आपको क्वेसी डेब्ट्स भी समझने पड़ेंगे। अब क्वेसी डेब्ट्स कैसे हो सकते हैं? क्वेसी नेचर के, आपने डायरेक्टर्स को क्रेडिट कार्ड दे रखा है और क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है आपकी कंपनी करती है। अब कंपनी ने दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स किए, राइट? एक तो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर, लेकिन कुछ बीच में डायरेक्टर्स ने अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी वहां से पे कर दिए। तो क्या ये एक्सपेंडिचर जो उसने पर्सनल पॉकेट के लिए कर दिए, क्या ये लोन टू डायरेक्टर कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज अ रीएम्बर्समेंट। जो अमाउंट आपका इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया गया है, इट मींस जहां पर आपका केवल ऑफिशियल वर्क एग्जीक्यूट हुआ था, अगर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किया है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी इंसिडेंटनेस, ये सब देखी जाएगी। स्ट्रेट अवे आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में जहां कॉम्बिनेशंस आते हैं कि ऑफिशियल एक्सपेंडिचर भी आप कर रहे हैं और आप उनके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को रीएम्बर्स कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि पर्सनल एक्सपेंडिचर मे बी एज इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर टू द मेन ऑफिशियल एक्सपेंडिचर। तो उसको आप कौसी किस्म के डेब्ट बोलते हैं जो आप रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां पर बहुत बार आप ये समझा नहीं पाते हैं कि क्या ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो कंपनी के नाम पर है, क्रेडिट कार्ड आपने डायरेक्टर्स को दिया यूज करने के लिए, डायरेक्टर्स ने उसमें से कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी किए अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल एक्सपेंडिचर, तो क्या ये प्राइवेट पार्ट, जो प्राइवेट आपका फाइनेंशियल पार्ट है जो आपने पे किया अपने डायरेक्टर के लिए, क्या ये सेक्शन 185 में आएगा? तो इसको आपको बहुत टेक्निकली देखना होगा। इज इट इंसिडेंटल टू योर मेन ऑफिशियल वर्क और नॉट? So this is called as quasi nature of your book debts. तो ये आपके डायरेक्ट नेचर में आते हैं, रेडिक्स के साथ नहीं आते हैं। नाउ ये रिस्ट्रिक्शंस जो अप्लाई होंगी ये एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस होंगी। उसका एग्जांपल बड़ा क्लियर है। एनी टाइम फॉर एग्जांपल यू गिव सम एडवांस और लोन टू एनी एम्प्लॉय and that employee tomorrow becomes a director because it has come to the court many a times before NCLT also, right, at the time of compounding of the this offense under section 185. So it was found by the court that when the transaction was done, this transaction was between the company and its employee, and that loan was persisting at the time when that employee was designated as director of the company. Sometimes it may happen, sometimes vice versa. A director may become only a merely employee. He may resign and he may just go back. So on both the conditions and positions, these restrictions will carry on or not, it will be understood by the understanding and plain understanding of section 185. अगर आज एम्प्लॉय है, लोन दिया है, कल वो डायरेक्टर बन गया, तो प्रीवियस ट्रांजेक्शंस आपकी सेक्शन 185 में नहीं आएंगी। जिस दिन से डायरेक्टर बनेगा उसी दिन से आपकी वो ट्रांजेक्शन शुरू होगी डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर द अमाउंट। इसी तरह से वाइस वर्सा व्हेन डायरेक्टर बिकम्स अ एम्प्लॉय। नाउ whenever a private company has given any sort of loan or guarantee, or maybe it has provided securities by way of whatever mode to any other person who is indirectly related to the director, and if this loan, guarantee or security which was earlier exempted from the provisions of section 185, it will continue to be exempted. So ये कुछ exemptions आ जाती हैं समझने के लिए। कुछ बुक डेब्ट्स के पार्ट को आपको समझना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शंस जब भी आप डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 185, वो एज पर द टाइम फ्रेम करेंगे। वो टाइम एंट्री करने का था या वो आपका टाइम डेजिग्नेशन को आपने जब कैच किया और रिलेशंस को कैच किया या क्रिस्टलाइज किया, डिफाइन किया, डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तब आप लेंगे। तो आपका सबसे बड़ा पैरामीटर है कि आप का जो टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसमें जाना ही जाना है और उसको डिटरमाइन करना है कि क्या प्रीवियस वैल्यू को आप इस वैल्यू में ऐड करेंगे एज ए इंसिडेंटल मे बी मे बी प्रोविजन अंडर सेक्शन 185, और वेदर दिस अमाउंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड
whether retrospectively you have to take some approval from the board or the general meeting. So ये कुछ ऐसी किस्म के डेप्थ्स हैं जो आपको डिटरमाइन करने होंगे on case to case basis. Now, sometimes some of the directors of a company, they are advised that they should not expose themselves for the companies of which they are directors by providing security guarantee, for example. Why? Because the Ministry of Corporate Affairs is very clear under the era of IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. Many times it has, come to the court that at the time of entering into a transaction, the directors have given some sort of a security to a relation which is covered under Section 185. And when IBC was initiated, when IBC just activated on a corporate debtor, then these relationships just, they were just ungrounded actually. So during the course of your investigation or audit, whatever you say, I may say the audit, you have to be very cautious whenever you are taking these securities or guarantees in favor of maybe the third person. So Ministry of Corporate Affairs has clearly mentioned that directors should avoid those situations where they may not expose themselves, that the companies of which they are the directors, they cannot give risk to the company by providing blind securities in any circumstances which may just make the company under financial dilemma. So ये आपको ध्यान रखना है. Section 185 एक प्रोटेक्शन भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो कहीं ना कहीं किसी मोड पर आपको मिल जाएगा. ये मोड आपका IBC का मोड भी हो सकता है. And then MCA or maybe the agencies, the regulator may take it very severely. For example, in a lot of IBC cases where corporate debtor was targeted, the directors of the corporate debtors, they were investigated, their personal accounts, their relatives' personal accounts, their associated companies and their relatives' companies were investigated for the cross financial transactions, and they were found that they were all non-complying the provision of Section 185 of the Companies Act. So you have to be very clear, not in this balance sheet, but that balance sheet may be exposed to the next level where that company may be the subject matter under IBC actually. Now, there are various instances, my dear friends, where loans relating entries or instances where loans or to any entity or concerns where directors may become or are interested. So this is a present approach and the future approach both. So any public company which has advanced a large sum, which is free of interest to one of its directors and his relative, it was just, produced before the court during the course of some investigation. It was a mismanagement and operation case under Section 241 of the Companies Act. The independent observer was appointed, and independent observer appointed by the NCLT that was just interpreting the provisions of Section 185 in correlation with the financials of the company or the latest balance sheet or last 3-year balance sheet. What it found, those balance sheets were related to the public company. So that public company advanced a very, high term loan and maybe amount, they call it as amount, not loan, to its directors, and that was also free of interest. उनके interest, उनके relatives को भी वो दिया, loan दिया. So when the court asked to explain why and how and when, so they were under question actually by the regulator, and how Section 185 came into the picture. When those directors were giving their explanation by way of a reply or rejoinder, whatever you say, the company contended that the advances were made to these persons in connection with the company's business. अब देखिए इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए आप सब लोग. Whenever you are trapped, जब भी आप कहीं से भी किसी से भी आप कोई रेगुलेटर आपसे बात पूछेगा, कुछ भी कहेगा, तो आपको एक ही बात कहनी होती है अपने रेगुलेटर से, सर ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थी, हमने बिजनेस के लिए दिया था सर, एडवांस दिया था सर, इसने अपनी बुक्स में एडवांस लिया हुआ है. सबसे पहले तो दोनों की बुक को जरा मैच करा लीजिएगा बिफोर यू गो टू द रेगुलेटर. और उसने क्या कहा कंपनी ने जवाब में कि सर ये कंपनी के बिजनेस के लिए दिया गया था. एंड व्हेन द
investigation was carried out in their respective capacities, they were no doubt employees of the company, but they were required to purchase stores, spares, parts, etc. on behalf of the company and to incur expenses on traveling on company's business. अब जरा इन सब चीजों को आप बुनियादी तौर पर देखिए, अपनी बैलेंस शीट से मिलाते हुए अपनी किसी क्लाइंट से जरा मिला लीजिए। जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा अनरीजनेबल क्वेश्चन आएगा तो आप सब क्या कहने वाले हैं? क्या आप सब वही आंसर करने वाले हैं जो इस पब्लिक कंपनी ने दिया कि सर दोस फंड्स व्हिच हैव बीन गिवन टू दीज एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एक्चुअली दे वर रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड स्टोर्स, स्पेयर, पार्ट्स, उनको कुछ ट्रेवलिंग करनी थी बिजनेस के लिए, उसके लिए एडवांस दे दिया सर हमने। बट कोर्ट इज नॉट दैट फुलिश एक्चुअली, कोर्ट इज नॉट फूल। कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराया, उसके ऑब्जर्वर ने जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स थे अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी, they framed their opinion that it appeared that all such advances could hardly be considered as having been made for the purpose of the business of the company. First of all, this connection was not established. आप कर ही नहीं पाए। आप लाख कह लीजिए कि हमने एडवांस स्टोर्स को, स्पेयर्स को, स्टेशनरी को, पार्ट्स को या अपने रियम्बर्समेंट के लिए जो कि हम बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं उसके लिए किया है, बट आप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अमाउंट इन्वॉल्व्ड वाज लार्ज एंड रिमेन्ड अनएडजस्टेड फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। जहां भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो गया किसी भी एडवांस को लेकर, आप सेक्शन 185 में 100% ट्रैप हो जाएंगे इफ यू हैव नॉट कंप्लाइड। और यही इस केस में हुआ था। द एंट्री वाज जस्ट ओवरलैपिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो कोर्ट ऑब्जर्व वेरी क्लियरली, क्या बात कर रहे हैं आप क्लीन हैंड के साथ हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। आपके जो स्टेटमेंट है वो एकदम से रियलिटी से बहुत दूर है। आपने जितना अमाउंट बुक किया है या एडवांस के नाम पर आपने दिया हुआ है, दैट इज वेरी लार्ज अमाउंट, और वो जस्टिफाई भी आपने नहीं किया हुआ है, अनजस्टिफाइड है। इट रिमेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स where you must have booked certain expenditure as per the bill or reimbursement bill raised by those respective employees or director. तो देखिए आप ट्रैप कहां हो जाते हैं। तो ये सेक्शन 185 की नॉन कंप्लायंस थी। इसका मतलब जिस डायरेक्टर को दिया हो तो ठीक है, डायरेक्टर हो गए, बट ये ज्वाइंटली एंड सीवियरली है ये पोजीशन जो कि प्रोसिक्यूशन के लिए जाती है। या मैं कहता हूं कि उसको आप जब भी नॉन कंप्लायंस में जाएंगे तो सारे डायरेक्टर सीवियरली एंड ज्वाइंटली या जितने भी की मैनेजर पर्सन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्चुअली। तो ये केस लॉ के ऊपर ये बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन आई कोर्ट की कि आपका अमाउंट, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपका स्टेटमेंट तीनों एक दूसरे से कहीं भी कॉरलेशन या रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करते हैं। तो सेक्शन 185 इज नॉट दैट इजी। आपके लिए केवल वो 5 क्लॉजेस जो मैंने बताए वो तो समझने जरूरी हैं, बट उसके साथ साथ जब आगे अपनी बुक्स में आप बुक डेब्ट्स को, सिक्योरिटीज को, गारंटीज को या डायरेक्ट लोन को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत स्मार्ट रहना पड़ता है या बहुत स्मार्ट प्रूफ देना पड़ता है। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट लोन? क्योंकि वर्ड इनडायरेक्ट आया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई गारंटी ना दे या सिक्योरिटी ना दे। तो एक कोर्ट के सामने ये भी आया कि कुछ 7 कंपनीज थी जो कि बॉडीज कॉर्पोरेट थी। ये 7 बॉडीज कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनीज थी, राइट? They belonging to a particular group. They were in India actually, operating their business in India. They formed 2 private limited companies with the different persons actually. And then they made loan to these 2 companies. अब ये जो लोन है my dear friends, ये एक तरह से इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट कराएगा। मैं आपको सेक्शन 73 में लेके जाता हूं। सेक्शन 73 में जो रूल 21C है वहां पर आईसीडी को एग्जम्प्ट किया गया है डिपॉजिट की कैटेगरी से, और जब आप डिपॉजिट की कैटेगरी में गए तो वो लोन ही होगा। तो आपने इसको इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट का नाम दे दिया। उन कॉर्पोरेट्स ने इन 2 प्राइवेट कंपनियों को जिसको लोन दिया, दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया। नाउ दीज 2 कंपनीज जो ये बनाई गई जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में जब लोन आपके पास आया इन 7 कंपनी से 2 कंपनियों में, इन 2 कंपनियों ने उस लोन को आगे दे दिया एक पार्टनरशिप फर्म को। ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर
जो प्रिंसिपल मेंबर्स हैं उस ग्रुप के बिलोंगिंग टू इंडिया, दे वर द बेनिफिशियरी। बट देखिए स्मार्ट मूव देखिए, क्या इसमें आप इंप्लीकेशन देख पा रहे हैं सेक्शन 85 का? कोर्ट ने देखा, बट यहां पर कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है वेदर दिस इज सेक्शन 185 एंट्री और नॉट। कितने मजे की बात है। ये जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको बताया, या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत क्रिटिकल था, बट यहां पर जब आप आते हैं तो इसको दोबारा देखिए कि 7 कंपनीज ने 2 कंपनियों का क्लटर बनाया। उन 2 कंपनियों ने फंड्स लेके आगे एक पार्टनरशिप फर्म को दिया, जहां पर उन 7 कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव एज ए पार्टनर्स बैठे हुए थे। सो दो कंपोजिशन था of the board of directors of these 2 private companies, that was so beautifully arranged that the loans from the companies would not attract the provision of section 185. Now by this device, the provision of section 185 were cleverly circumvented. A direct loan from the public companies to the partnership firm would have attracted section 185 बिकॉज उनके डायरेक्टर पार्टनरशिप फर्म में क्या बन के बैठे हैं? पार्टनर्स बन के बैठे हैं। तो देखिए डिवाइस करने का तरीका देखिए जो सामने आया। बट यहां पर कोर्ट को जब इन्वेस्टिगेट किया, ये नहीं मिला कि क्या सेक्शन 185 एप्लीकेबल हो रहा है। वो ये जानना चाहती थी क्या ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रांजेक्शन थी, क्या ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी। तो आपकी बैलेंस शीट में भी कभी कभी आपके क्लाइंट्स की बैलेंस शीट में या आपके क्लाइंट्स के डिस्कशन में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जो सेक्शन 185 से रिलेटेड होती है। और ये मैं बीच में इसलिए आपको डिस्कस करना चाहता था कि देखिए एक तरफ तो सीवियरली आप ट्रैप हो चुके हैं, जो कि आपका ये प्रीवियस एग्जाम्पल था जहां ये इंस्टेंस बिल्कुल क्लियर था। आप रेगुलेटर को बोल रहे हैं कि सर हमने एडवांस दिया है टू जस्ट फेस सर्टेन एक्सपेंडिचर टू बाय सम स्टोर्स स्पेयर पार्ट्स। हम कुछ कंपनी के ट्रैवलिंग के बिजनेस के लिए जाते रहते, तो उसके लिए हमने एडवांस दे रखा है अपने डायरेक्टर्स को। बट हाउ लॉन्ग? यू हैव टू जस्ट टेक दैट मनी बैक बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और मे बी देयर मस्ट बी अ रीजनेबल अमाउंट, देयर मस्ट बी अ रीजनेबल टाइम फ्रेम within which that amount has to be reverted. According to me, a 3 months time, maybe one board meeting to another board meeting, 120 days, 4 months time. So you have to report that amount actually from time to time, not as that you are just overlapping year after year। और 2 साल के बाद कहते हैं कि सर 2 साल पहले हमने एडवांस दिया था, वो एडवांस हमने रियम्बर्समेंट और परचेज के लिए दिया। यू कांट से सस्टेनेबल नहीं है वो। और यहां पर आपने देखा कंपनी ने किस तरह से डिवाइस किया, जो आप एज ए नॉट एज एडवाइस, क्योंकि मैं पहले डिस्क्लेम कर चुका हूं ये एडवाइस नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन हार्ड फैक्ट्स ऑफ लॉ which establishes the harshness of the section, and section ultimately is not applicable. So this is something very important, my dear friends. Now when you say restrictive, तो आपको permissible में तो आना पड़ेगा कि सर 185 क्या बिल्कुल restrictive है, हम कर ही नहीं सकते। देखिए सेक्शन 185 2 बार मेजरली चेंज हुआ। सेक्शन 185 2015 में चेंज हुआ और 2018 में चेंज हुआ। बड़ी सारी चीजें हैं। पहले 185 को प्राइवेट कंपनी लोन दे ही नहीं सकती थी अपने डायरेक्टर्स को, बट ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ लिमिटेशंस के साथ कहा गया कि यस आप ये लोन दे सकते हैं। तो ये परमिसिबल लोन्स, गारंटीज और सिक्योरिटीज विच आर टेकन बाय एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, ये कब दे सकते हैं? आइए इसको पढ़ते हैं जो सब सेक्शन 2 में दिया गया है। इट मींस सेक्शन 185 इज अ प्रोवाइडिंग सेक्शन आल्सो। व्हेनेवर ए कंपनी, either a private company or a public company, they may advance any loan, including any loan which is represented by book debt, means credit पर दे सकते हैं, और give any guarantee also, और provide any security also। तो 4 एलिमेंट है। पहला डायरेक्ट लोन, दूसरा बुक डेट, थर्ड गारंटी, फोर्थ आपकी सिक्योरिटी। इन चारों को आप याद रखेंगे। इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी पर्सन, टेकन बाय एनी पर्सन मीन्स who is directly connected with the company as a director, in whom any of the director of the company is interested। तो वो पर्सन और कौन से हो गए? प्राइवेट कंपनी हो गई जिसमें आपका डायरेक्टर है, पार्टनरशिप फर्म हो गई जहां पे आपका डायरेक्टर पार्टनर है या पार्टनर का भी कोई रिलेटिव है। तो आपको अगर ये लोन देना है प्राइवेट कंपनी के केस में, कंपनी के केस में, तो आपको जनरल मीटिंग में
एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। आपको जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर देना है कि आप ये क्यों दे रहे हैं, पर्पस क्या है, आपको रिलेवेंट फैक्ट्स वहां पर बताने हैं, और ये सारा डिस्क्लोजर, सारे पर्टिकुलर्स अबाउट द लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, पर्पस क्या है उस लोन का जिस वजह से जा रहा है वो लोन या गारंटी, क्या यूटिलाइजेशन होगा, रेसिपिएंट जो बोरोअर है उसके मेन बिजनेस में वो पैसा यूज होना चाहिए, फर्दर वो पैसा लोन की तरह कहीं और ना जाए। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बोरोअर के बिजनेस में वो पैसा लगना चाहिए। ये फैक्ट्स वो देगा अपने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में जो सेक्शन 102 के अंदर आप बनाएंगे। इट मींस ऑल द लोन्स आर टू बी यूटिलाइज्ड बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। अब ये प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, मेमोरेंडम जाके चेक करिए, मेन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपका मेन ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर बिजनेस को बताता है कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं, तो उस बिजनेस के अंदर ही आपको ये पैसा लगाना है। अगर आपको ये पैसा लेंडर से मिल रहा है तो लेंडर को क्या कंप्लायंस करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। लेंडर को और क्या कंप्लायंस करनी है, लेंडर को एक एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देना है। लेंडर को एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है, उसको पर्पस लिखना है, अमाउंट लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, कंपनी जो रेसिपिएंट है, बोरोअर है, वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूज करेगी, ये डिस्क्लोज करना है। जो रेसिपिएंट है, जो बोरोअर कंपनी है, उसको क्या करना है, उसको जो पैसा मिला वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज करना है। यहां पर आपको ये जो ऑडिट का फ्रेम आता है आपका, जब आप ऑडिट में जाते हैं, चाहे कारों में करें, आप कैसे भी करें, तो अपने ऑडिट में अपने टारगेट क्लाइंट को आप इस तरह से ऑडिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो एंट्रीज हैं सेक्शन 185 में किस तरह से निकल सकती हैं। तो अगर आपने ये प्रीवियस ईयर में पास कर रखा है स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स ने, और आपने ये एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में लॉजिक दे रखा है, आपने टारगेट कंपनी को भी यूज कर देख रखा है, उससे एक आपने स्टेटमेंट लिया हुआ है कि आपने जो भी लोन आपको मिला मेरी कंपनी से, लेंडर से, जिसका मैं ऑडिटर हूं, तो आपने अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूज किया, जिसको यूज सर्टिफिकेट कहते हैं, आप ले सकते हैं। यू हैव द राइट जस्ट टू कैरी आउट योर ऑडिट एक्टिविटीज, तो आप कर सकते हैं इसको। नाउ the transactions which are exempted from section 185 and subsection 185(2). सुमित जी, हमारे 30 मिनट्स हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम बीच में ले सकते हैं, यहां तक कोई भी पार्टिसिपेंट पूछना चाहे, एनीवन, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। आशा जी, कोई क्वेश्चन है क्या? एक मिनट। चैट बॉक्स में इस टाइम पे क्वेश्चन नहीं है अभी हाँ तक। हाँ, अभी तक तो नहीं है। आई थिंक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पोस्ट में डाल दीजिए, दोबारा में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो टेकअप कर लेंगे। मैं हर 30 मिनट्स के बाद ब्रेक ले लूंगा, एक छोटा सा 2 मिनट का। राइट राइट राइट। जस्ट टू हैव द क्वेश्चन, और लास्ट में तो हम लेंगे एज ऑलवेज। अजय जी वांट टू आस्क समथिंग सर। या अजय जी? यस अजय जी, प्लीज। Hello, sir. हेलो। Good evening. Hi, Actually, good sir, evening. I have a few questions on this section, relating to this section till now. First one, what is the status relating to LLP? Whether they are covered or not, because LLP is being treated as body corporate. So whether it would be covering under these provisions or it will fall out of it. It is out of it actually. LLP is out of it. और आप जब लेटर मेरी स्लाइड्स में जाएंगे तो वहां मैंने आपको जो नॉर्म्स डिवाइस करने हैं आपने, जस्ट टू फ्रेम आउट ऑफ दिस सेक्शन, वहां पर एलएलपी का भी नाम है। Sir, next question is what if the director later you can say change to as a shareholder? First he was a director, now he is a shareholder only, he ceased to be a director. Then देखिए, इस केस में जब वो डायरेक्टर है और शेयर होल्डर है तो मैं लोन तो शेयर होल्डर को भी नहीं दे सकता, बिकॉज इट बिकम्स पब्लिक डिपॉजिट एक तरह से, और प्राइवेट कंपनी तो दे नहीं सकती है, राइट? तो वो तो वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा सेक्शन 73 के अंदर। and secondly, when we comes to the regulator side, the regulators can later on raise some queries or you can say take action against the some amount given as a loan under this provision. So when we file DPT3, DPT3 is not an STP form. So can we take a stance that since we have already filed a DPT3,
and the disclosure is already there, so there should not be any penal consequences on that. Ajay ji, DPT is only for the deposits under section 179. It's not for loans and advances under section 185 or 186. So there is a specific other provisions or maybe compliances which you have to follow by just, you know, I will cover in the later slides how you have to comply the law also. क्या क्या फाइल करना है आपने, बट यहाँ पर जो डीपीटी फाइल कर रहे हैं वो आप सेक्शन 79 में कर रहे हैं, जो कि आपके डिपॉजिट्स हैं या डीम टू बी डिपॉजिट्स हैं. नहीं sir, in DPT3 we also files give information about the amount which is not treated as deposits. आप वहां पर देते हैं जैसे बोरोइंग्स, आपने लोन आपने बोरोइंग्स की बैंक से की, आपने एनबीएफसी से बोरोइंग्स की, राइट, आपने किसी और से बोरोइंग की, वो जितनी भी बोरोइंग्स हैं वो आपकी एक डेट पर जैसे 31 मार्च 2023 को आएंगी आपकी, फॉर एग्जांपल, जो आप जून तक फाइल करेंगे. अब ये आपकी कंप्लायंस 185 की कंप्लायंस नहीं है, दिस इज अ डिस्क्लोजर एक्चुअली, दिस इज नॉट द कंप्लायंस, दिस इज अ डिस्क्लोजर. करेक्ट. बट आपको ये बात जरूर है, आपकी क्वेश्चन से एक मेरा क्वेश्चन का और जवाब मिलता है किसी और के लिए भी, अगर कोई पूछ पाए कि 79 के अंदर जब आप जाते हैं डीपीटी भरते हैं और डीपीटी में फिगर डालते हैं, और अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं डेविएट कर जाती हैं लोन्स में या एडवांसेस में, तो लोन विल रिमेन अ लोन. वो 100 रुपीज का लोन हो सकता है अगर मैं कहूं, उसको आप जब सब कैटेगराइज करेंगे तो आप कह सकते हैं कि लोन टू XYZ लिमिटेड एंड लोन टू मिस्टर ए. तो ए तो हो गया डायरेक्टर और XYZ लिमिटेड रिलेटेड और अनरिलेटेड एक कॉर्पोरेट हो गया, तो वहां पर आपको सब कैटेगराइज करना पड़ता है. बट डीपीटी के अंदर जब आप डालेंगे तो एक कंसोलिडेटेड अमाउंट डालेंगे, तो ये डिस्क्लोजर है आपके लिए. राइट सर, थैंक यू. होप आपको समझ में आया होगा. ना समझ में आया तो दोबारा पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव में ही क्वेश्चंस कुछ जो केस लॉ लेकर आया, मैं सीधे सीधे लॉ भी पढ़ा सकता हूँ बट और पढ़ भी सकता हूँ, बट ये जो पूरा का पूरा फ्रेम है, ये फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके ऑडिट के लिए. आप जिस तरह से ऑडिट करते हैं या आप करवाते हैं तो उसके आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है. फॉर्म्स को आपको 360 डिग्री में लेना चाहिए. मेरे क्लाइंट हैं, इज अ वेरी गुड क्लाइंट, उनके डीपीटी मुझे 2 बार चेंज करने पड़े. कैन यू बिलीव? इसी वजह से, बिकॉज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर सो स्कैरी, सो कंफ्यूजिंग, they could not determine whether it has to be advance or whether it has to be a loan. तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को आपको दूर करना होता है. Sir, another question just out of this question, can we revise DPT3 or we can just file another one? Another one. After Another one. आपका रूल 1016 है, जिसको हम रूल 10 कहते हैं एक तरह से 16 के अंदर. तो इसमें अजय जी हम जाके आरओसी के पास एक एप्लीकेशन डालते हैं कि अर्लियर फॉर्म को आप सिस्टम से हटा दीजिए, सिस्टम से हटा दीजिए, कर दीजिए. तो वो थोड़ा आपको परसू करना पड़ता है, आप करा के फिर एक फ्रेश फॉर्म फाइल कर सकते हैं. राइट सर, थैंक यू. प्लीज. या कोई और आशा जी क्वेश्चन किसी का? या तो आई कैन गो ऑन सुमित जी. Sir, many other queries in the chat box. मैं एक बार रीड करता हूँ. पढ़िए ना, पढ़िए. पहली क्वेरी है, just a minute. If loan taken more than FD rate, then any issue? मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में पढ़ाने वाला हूँ कि इसका टेन्योर को आप 1, 3, 5 और 10 उसके टेन्योर के अकॉर्डिंगली आसपास रखेंगे, जो कि आपका लेबर रेट होता है. Okay. Whether relative includes step daughters beside daughters? देखिए, आप अगर रिलेशन की डेफिनेशन में जाएं तो वहां पर आपने देखा कि स्टेप डॉटर कवर नहीं हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्याह के कहीं ना कहीं जाने वाली है. तो गवर्नमेंट एजेंसी बड़ी इनफैक्ट आई थिंक क्लियर है उस बात में. स्टेप सन है बट स्टेप डॉटर नहीं. Okay. And next one is, can a private company gives loan to a LLP where one of the director is DP as well as partner? LLP is also a body corporate. बॉडी कॉर्पोरेट. सो बॉडी कॉर्पोरेट है बट एलएलपी यहाँ पर अलग हो जाती है सिस्टम से, तो कर सकते हैं इस ट्रांजेक्शन. Income tax will also trigger then as a deemed dividend if person becomes shareholder. I don't get it. Income tax will also trigger Yeah. then as a deemed dividend Yeah. if person becomes shareholder.
एब्सोल्युटली, वो अजय जी के क्वेश्चन का शायद इन्होंने जवाब दिया है यहाँ पर। अच्छा ओके राइट, हाँ right. हाँ हाँ, ये अमरन जी के क्वेश्चन का ये जवाब वो दिए। डीम डिविडेंड जो आता है आपका इनकम टैक्स में, डेफिनेटली Yes, वो sir. ट्रिगर हो जाएगा। यस, Yes, अजय we जी के can. क्वेश्चन को कॉरलेट किया होगा आई थिंक, जहाँ तक मैं Yes, समझ sir, we can move ahead. परफेक्ट। ऐसे गुड वन। होप कि सब लोगों ने अपनी शाम की चाय ले ली होगी, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा आपको अभी और बैठना है आधा पौना घंटे, तो मैं पूरा करूंगा उसको, देन वी विल हैव अ वेरी गुड। अभी तक का सेशन आई बिलीव आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा होगा, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो कहीं ऑडिट के लिए आपके लिए आगे काम आएंगी। नाउ ट्रांजेक्शन विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन 185 अंडर सेक्शन 185 सेक्शन 1 and 2। सो यहाँ पर अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को लेते हैं, और उसमें कोई भी आपने होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एक सर्विस एग्रीमेंट किया हुआ है, एंड उस सर्विस एग्रीमेंट के अंदर आपने उसको एक लोन देना है, राइट? लेकिन वो लोन आपका केवल एमडी या डब्ल्यूटीटी के लिए नहीं है, एज ए जनरल रूल है, वो आप सारे एम्प्लॉइज को भी देते हैं, इट इज एग्जम्प्टेड। अगर कोई भी एक ऐसी स्कीम डिवाइस की गई है कंपनी में जहां हमारे एम्प्लॉइज को लोन दिया जा सकता है, तो उस स्कीम के तहत वो स्कीम आप बोर्ड में अप्रूव करेंगे, एंड उस स्कीम को आप सारे एम्प्लॉइज के लिए स्प्रेड आउट करेंगे, सारे एम्प्लॉइज के लिए करेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, तब भी वो आपके एग्जम्पशन में आ जाएगा। नाउ जहां पर कोई भी कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस प्रोवाइड्स लोन और गिव गारंटी or provide security for the dues repayment of any loan, and in respect of such loan or interest on that loan which is charged at a rate not less than the rate of the prevailing yield, that is the answer 1, 3, 5, 10 years or nearest one actually, and that is matched with the government security closes rate of tenure actually, right? Then यहाँ पर ये जो आपने पेमेंट किया ये आपके एग्जाम्प्ट हो जाता है। कोई भी लोन which is made by a holding company to its होली ओन सब्सिडरी कंपनी, कोई भी लोन अगर आप बनाते हैं होल्डिंग कंपनी से होली ओन सब्सिडरी तक जाता है, और दोनों में डायरेक्टर कॉमन है, वहां भी आप एग्जम्प्ट हो जाते हैं। और एनी गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी, थर्ड पार्टी से मिला है आपको लोन होली ओन सब्सिडरी को, वहां पर होल्डिंग कंपनी ने सिक्योरिटी या कोई भी गारंटी दी है, वो भी इस सेक्शन से एग्जम्प्ट हो जाता है, बिकॉज कॉम्बिनेशन है होल्डिंग और होल्डी ऑन सब्सिडरी का। कोई भी गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लोन व्हिच इज मेड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, ये दोनों आपके एग्जम्प्ट हो जाते हैं। सो यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिडरी कंपनी द लोन अमाउंट shall also be used in the principal business activities। सब्सिडरी कंपनी आगे लोन नहीं देगी। देखिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कहा, एमसी के सर्कुलर ने कहा कि आपको एग्जम्पशन मिलेगी, सब्सिडरी कंपनी को लोन दीजिए, उसके लोन को चुकाइए, गारंटी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, बट सब्सिडरी कंपनी विल यूज दोज फंड्स फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, ये आपको चेक भी करना है ऑडिट के टाइम पर। नाउ ये कुछ एग्जम्पशंस हैं व्हिच हैव बीन गारंटीड टू सर्टेन कंपनी फ्रॉम सेक्शन 185। तो चाहे ये नोटिफिकेशन 2015 का है, ये 185 प्राइवेट कंपनी को एग्जम्प्ट किया गया था, और प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 185 केवल 3 कंडीशन में लगेंगी। 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है तो सेक्शन 185 आपके ऊपर नहीं लगेगा। प्राइवेट कंपनी इन हुज शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, आपके शेयर होल्डर की लिस्ट में कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ना कोई कंपनी है, ना कोई फॉरेन कंपनी है, सारे इंडिविजुअल्स हैं। अगर प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग्स, राइट, बोरोइंग्स ऑफ सच प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन the twice of its paid up share capital or rupees 50 crore whichever is lower, तो भी applicable नहीं हुआ। Such a company, such a private company has no default in the repayment of such borrowings which is subsisting at the time of making transaction under this section। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों की बात हो रही है, तो अगर तीनों में आप देखा और है, अगर आप इन तीनों में फुलफिल कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 185 से एग्जम्प्ट हो जाती है। लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग है तो ये सेक्शन लगेगा।
अगर आप डबल ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ऊपर जा रहे हैं तो भी लगेगा, राइट? क्योंकि 50 करोड़ की तो डेफिनेशंस को और कंजंक्शन लगा के कहा गया है। अगर आप डिफॉल्ट में हैं अपनी किसी और सब्सिस्टिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स में, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में, तो भी आपके ऊपर एग्जम्पशन लागू नहीं होगी। तो ये आपका एक तरह से कॉन्ट्रेरी व्यू है। इसका मतलब तीनों कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए, या मैं कह सकता हूं तीनों कंडीशन थी, कोई भी कंडीशन आपकी अगर आपने पूरी कर ली तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, सेक्शन 185 के कंप्लायंस से बाहर हो जाएंगे। नाउ निधि कंपनीज को और गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशंस दी गई है, इसको बहुत ध्यान से आपने रखना है कि एग्जम्पशन इन निधि कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज को है, और निधि कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये एक नोट बनाकर डिस्क्लोज करना है अबाउट सच लोन टू डायरेक्टर। नाउ कुछ फाइन्स हैं जो कि सेक्शन 185 में लगाए गए हैं। 5 लाख का 25 लाख तक आपका हो सकता है, 5 से 25 लाख, बोथ भी हो सकता है। 6 मंथ और 6 महीने की सजा दे रखी है आपकी। हर ऑफिसर को ट्रैप किया हुआ है, हर ऑफिसर, डायरेक्टर एंड कंपनी इसमें ट्रैप होगी। कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल बना दिया गया है, पहले क्रिमिनल एक्शन था बट अब इसको कंपाउंडेबल कर दिया गया है, राइट? तो 185 में इसको आप कंपाउंडेबल कर सकते हैं, या तो रीजन डायरेक्टर के सामने या आप एनसीएलटी के सामने जा सकते हैं। प्रिसाइसली अगर आप समझें तो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो अभी मेरे एक जो ऑडियंस है उसमें से एक प्रोफेशनल पूछ रहे थे कैसे बचा जाए। अपने जो लेंडर है, जो लेंडर आपका है और बोरोअर है, उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दो। जो कन्वर्ट है आपने बोरोअर कंपनी को लिमिटेड कंपनी में, जो बोरोअर कंपनी है उसको लिमिटेड कंपनी में कर दो, क्योंकि वहां प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की बात की जाती है। डायरेक्टरशिप को चेंज कर दो, राइट? अपॉइंट न्यू अनकॉमन डायरेक्टर, जो कि दोनों में कोई कॉमननेस ना हो, उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। कॉमन डायरेक्टर को रिजाइन करा सकते हैं, शेयर होल्डिंग को नीचे कर सकते हैं, 25% से नीचे ला सकते हैं, राइट? और जितने भी डायरेक्टरशिप है जो रिलेटिव्स को आपकी टारगेट करती है, तो उस डायरेक्टरशिप को आप चेंज करा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो हम हमेशा फॉलो कर सकते हैं सेक्शन 185 को प्लान करते समय या मैनेज करते समय। नाउ शेड्यूल 3 जो कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए बैलेंस शीट को फ्रेम करते समय, उसमें लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन को हमें शो करना होता है, दिखाना होता है। तो कैसे दिखाएंगे? तो दोनों का एक ही तरीका है। लोन्स एंड एडवांसेस का एक ही आपका नॉमेनक्लेचर है, which is due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person, or amounts which is due by firms or private companies respectively, in which any director is partner or a director or a member should be stated separately. इसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन को भी आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो जब सेक्शन 185 को आपने टारगेट कर लिया, गैस कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, क्रिस्टलाइज कर लिया, फिगर फाइनल है, अब आपको ये बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 में इस तरह से नॉमेनक्लेचर के साथ इस फिगर को दिखा देना चाहिए, जो कि लोन्स टू डायरेक्टर में आती है सेक्शन 185 में, फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एक्चुअली। नाउ ये पूरा समझने के बाद इसको दोबारा से एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। इस चार्ट में अगर आप देखें तो प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शंस या परमिसिबल लोन्स को दिया गया है। प्रोहिबिशन है कि कंपनी में नॉट एडवांस एनी लोन or give any guarantee, provide any security in connection with any loan taken by whom? Taken by these persons, taken by directly by the director or his relative or partner, taken by director of holding company or his relative or partner. इन दोनों में तो पार्टनर्स के रिलेटिव्स भी आ गए। तीसरा, any partner or relative of such director and any firm in which such director or relative is a partner. ये 4 कैटेगरीज हैं जो कि प्रोहिबिटेड है। इसकी एग्जम्पशंस मैंने बताई। नोटिफिकेशन जो कि 2015 का था प्राइवेट कंपनी के लिए, अगर कंडीशन पूरी करते हैं आप। 185(2) की जो परमिसिबल लिमिट्स हैं लोन्स की, वो एडवांस एनी लोन और इंक्लूडिंग एनी लोन which is represented by a book debt or give any guarantee, provide any security in connection with the loan, or maybe to any person in whom any of the director is interested, subject to 2 condition. अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में वेल डिफाइन कर दिया हो, और टारगेट कंपनी उसको बिजनेस मेन ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रही हो उस फंड को, और लोन आर यूटिलाइज्ड बाय द बोरोअर कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। इसको बहुत अच्छे से एज ए ऑडिटर आप ध्यान रखा कीजिए।
अब बोरोइंग कंपनी से आप एक डिक्लेरेशन लेना चाहिए या अपने ऑडिटी से ये कहना चाहिए कि वो एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन लेकर दे बोरोअर से, जो ये कहे कि ये जो लोन मुझे मिला है ये मैंने अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूज किया है। तो आप आपकी ऑडिट ट्रेल जो आपकी बनेगी, ये ऑडिट ट्रेल के अंदर ये आपका लेटर होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ परमिसेबल पर्सन्स हैं जिसको मैंने आपको बताया था, कोई भी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज ए डायरेक्टर और मेंबर, और ये आगे जाके क्या करती है, कोई भी कंडीशन जो कि वहां दी गई थी, 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन को फुलफिल कर लेती है, या कोई आपकी स्कीम डिवाइस है सारे एम्प्लॉयज के लिए, एमडी हैं, होल टाइम डायरेक्टर है, उनके लिए एम्प्लॉयज के साथ एक कॉमन स्कीम है जहां आप लोन दे सकते हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एग्जाम ट्रांजेक्शन्स होंगी। ये परमिसेबल पर्सन्स हैं जो अलाउ होते हैं सेक्शन 185 के अंदर। तो दिस इज व्हाट द सेक्शन 185 इज ऑल अबाउट। चेकलिस्ट देख लेते हैं, जो अगर कंप्लायंस चेकलिस्ट है ये कि हमें अगर सेक्शन 185 एप्लीकेबल हो रहा है तो मुझे करना क्या क्या है। सबसे पहले आपने क्लॉज नंबर 1 में पढ़ा कि ये रिलेशंस आ रहे हैं, ये 185(1) की और 185(2) की ट्रांजेक्शंस ट्रैप हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, और आपने डिसाइड कर लिया कि इस फिगर को आपको 185 में करना है। तो कंपनी को क्या कर लेना चाहिए था, कंपनी को सेक्शन 179 जो कि बोर्ड पावर्स को लेकर है, 186 जो कि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, और सेक्शन 188 जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को लेकर है, ये कंप्लाई हो जानी चाहिए थी आपके बोर्ड एक्शंस में, बोर्ड के रेजोल्यूशंस में, जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशंस में, ऑडिट कमेटी के रेजोल्यूशंस में, एंड इसके ई फॉर्म्स आपके फाइल हो जाने चाहिए थे। आप जो रजिस्टर ऑफ लोन्स बनाते हैं उसमें एंट्री आपको चेक कर लेनी चाहिए, एमजीडी 14 आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये बोर्ड का और जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन आपने एमजीडी 14 में इन सेक्शंस के अंदर फाइल कर दिया है या नहीं कर दिया है। और कोई भी जो भी रेजोल्यूशंस हैं, they are recorded in the minutes of board of committees and other board and general meetings। तो ये compliances जो रेड में लिखी हुई हैं ये पूरी हो जानी चाहिए आपकी, ये चेकलिस्ट है आपकी सेक्शन 185 की, ऑडिट करते समय आप इनको चेक कर लीजिए। सो हियर मूव टू द सेकंड सेट, जो थोड़ा इजी है समझने में, 185 की तरह टिकलिस्ट नहीं है, बट कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज बेसिक्स अबाउट सेक्शन 186 which is related to investment and loans. So whenever you call intercorporate loans investments which are governed under the Indian Companies Act, wherever companies are indulged in sort of investing their funds actually in other companies, so there must be a restriction. As per the provision of the Companies Act, you cannot invest funds in more than 2 layers of your subsidiary company as well. So that is a restriction part. So ये जो intercorporate loans और investments हैं, इनको रेगुलेट करने की जरूरत थी, तभी ये सेक्शन 186 को लाया गया। नाउ ये जो सेक्शन लगता है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये 186 सेक्शन के अंदर डिफाइंड है। यहां पर कंपनी कैन आल्सो गिव लोन्स एंड गारंटीज एंड दे कैन आल्सो एक्वायर फ्रेश शेयर्स, और दे कैन मेक अदर ऑफर्स आल्सो फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो दैट विल आल्सो attract section 186 wherever you are making an investment in a fresh company, or maybe you are incorporating a company, for example. So apart from these basic understanding, let's understand what are the limits actually. So whenever limits are there, section 186 subsection 2 is clear that the limit should not exceed 60% of the paid up share capital and free reserves and security premium account. So 3 चीजें आपकी आ गई जब 60% आप देखते हैं, paid up share capital, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो फ्री रिजर्व्स के अंदर कोई भी एसेट वैल्यूएशन का अमाउंट नहीं आएगा। फ्री रिजर्व्स मीन फ्री रिजर्व्स व्हिच इज अलाउड टू बी डिस्बर्स्ड अमंग द शेयर होल्डर्स, फ्री रिजर्व्स कहलाते हैं। या और लगाते हैं वहां पर 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज हायर। ये लिमिट आपकी हो गई बाय डिफॉल्ट लिमिट। अगर आप इस लिमिट के अंदर हैं तो बोर्ड की अप्रूवल चाहिए आपको, एंड यू कैन गिव लोन to any person or other body corporate within that limit. You can give guarantee, you can give security, you can provide in connection of the loan any other guarantee. You can acquire, buy or purchase any subscription or otherwise any share and securities. So word यहाँ पर क्या आता है, securities आता है, जो आपको ध्यान रखना है। इस aggregate में security word आता है, और जो आपकी limitations हैं amount की, वहां 60% में paid up share capital, free reserves and security premium आता है, और जहां 100% की बात करते हैं वहां फ्री रिजर्व्स एंड
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता है। तो यहाँ जरा 3 चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जब बॉडी कॉर्पोरेट को समझाया गया है। तो बॉडी कॉर्पोरेट जैसा हम समझते हैं, इट इंक्लूड्स ए कॉर्पोरेशन, इट इंक्लूड्स ए बॉडी कॉर्पोरेट और ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट आता है यहाँ पर। कॉर्पोरेट सोसाइटी को बताया गया where by way of notification the corporate societies can become, because body corporate does not include the cooperative societies actually. Now, whenever you tend to determine which sort of a corporate has to be, seen whenever you are making an investment in other company, so company and body corporate will be there actually wherever your Indian outflow of funds is there in the Indian balance sheet actually. So यहाँ पर तभी body corporate का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। कुछ सिक्योरिटीज जो आपको अभी बताई कि क्योंकि वहां पर आप शेयर कैपिटल ना कह के सिक्योरिटीज कहते हैं, तो सिक्योरिटी आल्सो इंक्लूड्स सम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वारंट्स, स्क्रिप्ट, और कोई भी आपका ऐसा मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि डेरिवेटिव्स में है, राइट्स में, इंटरेस्ट में, सिक्योरिटीज में है, और इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट इट कैन आल्सो बी इन्फर्ड दैट वारंट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल, दे आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आल्सो। तो ये उसकी नेचर होती है इंस्ट्रूमेंट की कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कन्वर्टेबल टू शेयर्स है वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में जाके SCRA एक्ट 1986 की डेफिनेशन से लिया गया है, वहां आपको अट्रैक्ट कराना होता है। नाउ क्या इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, दे आर इश्यूड बाय द ट्रस्ट नॉट द सिक्योरिटी, राइट? सो ये सिक्योरिटी नहीं है, ट्रस्ट करता है इसको इश्यू, इसलिए जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो इस लिमिटेशन में जो 186 में दी हुई है अमाउंट की उसमें नहीं आता है। बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम 186 में कवर करें, बोर्ड की अप्रूवल लें? तो इट्स इन्वेस्टमेंट नो डाउट, बट ये 186 की लिमिटेशंस में नहीं आएगा। आप इसको ध्यान रखें बिकॉज ये एक सिक्योरिटीज की डेफिनेशन से अलग हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका मेजर बिजनेस या प्रिंसिपल बिजनेस एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का हो, डिबेंचर्स का हो या अदर सिक्योरिटीज का हो, ये कंपनी भी इट विल बी डीम्ड एज ए प्रिंसिपली स्पीकिंग engage in the business of acquisition of shares, debentures or other securities. Now, if its asset side in the form of investment in the shares, debentures or other securities constitute in the balance sheet not less than 50% of assets, then it will become, or it is deriving its income invariably more than 50% or 50% from the investment business only, it constitutes as investment company. ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बिजनेस और डेफिनेशन सेक्शन 186 के अंदर दी गई माय डियर फ्रेंड्स, लाइक परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सम पर्पस ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन इज नॉट इन्वेस्टमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल you purchase a property for some purpose, it means company purchased the property for some purpose other than the receipt of income, that is not an investment actually, right? Meaning of business of financing a company actually, so business of financing industrial enterprises, it will include with regard to, like for example, category A or category B and BFC which are registered with the RBI, right? Or free reserves, whatever just we had just elaborated, they are free for distribution as dividend and they shall include balance to the credit of the security premium account as well. तो इन जब भी ऑडिट करें तो इन फिगर्स को कंसोलिडेट करके समझ जरूर लें 186 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात की गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट अमाउंट टू द इन्वेस्टमेंट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैं थोड़ा फास्टली इसको स्क्रॉल कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द टाइम। वाटर मैनेजमेंट हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गए, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड सोशल डेवलपमेंट्स हो गए एंड मेंटेनेंसेस हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशंस में आते हैं। लाइक पावर हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हो गई, हाउसिंग हो गया, दे आर कवर्ड अंडर मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 186. So infrastructure facility includes these all infrastructure facilities into power, petroleum, natural gas, housing, other miscellaneous facilities like mining, technology, manufacturing, environmental related infrastructure, disaster management services, preservation of monuments and icons, emergency service including medical policies, fire and rescues, any other things actually. So they are there actually. Now what is investment? Now investment means in the securities of any other body corporate, which includes shares, debentures, convertible debentures, warrants and bonds. So whenever you are investing in other companies, so you will invest in other securities. Securities will include this. So meaning of investment will be carried from the securities only. Securities include share debentures, convertible debentures, or warrants or bonds. Whatever is convertible to the share capital is treated as security, and security will be covered as a meaning of a investment.
investment for the purpose of section 186. Now there are exemptions under section 186. So wherever a loan or guarantee is given where security has been provided by a company to its wholly owned subsidiary, जैसे 185 में exemption थी, यहाँ भी exemption है. अगर आपने wholly owned subsidiary में किया invest, exempt नहीं आएगा. Suppose आपने 100 करोड़ की एक लिमिट ले रखी है for the purpose of shareholders और आपने 50 करोड़ का तो wholly owned subsidiary में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को वॉश आउट नहीं करेगा. ये अलग है. 100 करोड़ विल कैरी ऑन, वो आप करिए, क्योंकि wholly owned subsidiary का इन्वेस्टमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 186. कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है, it will not cover. Acquisition is made by way holding company by way of subscription, purchase or otherwise for the securities of its wholly owned subsidiary company. Now this company shall disclose the details of such loans or guarantees or securities in its wholly owned subsidiary company in its financial statement also. Government companies को exemptions हैं पूरा का पूरा, और ये अब section 186 की जो exemption है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है. गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कंपनी जो कि अदर देन लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज को यहाँ नहीं ले गया, वो तो कवर होंगी, राइट? या कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ ए कंपनी वेयर स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो द स्टेक होल्डर इन दोज कैटेगरीज ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, ये एग्जम्पशंस में आ जाते हैं. नाउ अंडर सेक्शन 186 power have been defined, so these power have to be understood that these power shall be decided in the duly constituted board meeting or by way of a circular resolution. So board of the company has the following powers. Number one, to make loans to anybody corporate. अगर आप सेक्शन 179 को रिकॉल करें तो ये बोर्ड की पावर्स हैं, वो बोर्ड में डिसाइड कर सकते हैं. बट जब वो बोर्ड में डिसाइड करेंगे 179 में, तो इनको 186 का रेजोल्यूशन पास कर लेना चाहिए व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज अट्रैक्टेड. लेकिन अगर उससे ऊपर चली गई लिमिट जो 60% 100% मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तब आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा टू गिव एनी गारंटी, सब्सक्राइब और फॉर एनी पर्पसेस. सो व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर entrusted with those powers, they have to execute by way of a resolution in the executed board meeting actually, and they will pass the necessary board meeting. The only necessity is that consent of all the directors who are present at the meeting shall be required. Majority se kaam nahi chalega. All the directors will give their consent to that investment, my dear friends. Now there is a limitation also on the power of the board. Wherever the ratio of 60% and 100% is exceeded, then the said limit will be just applied before the shareholders, and shareholder will give you the power over and above this limit provided by law actually. Now, requirement of seeking approval of under section 186 is very simple. You have to go to the shareholders, give it in the expenditure statement what amount you need. A blanket approval may not be available. Why? Because earlier 1999 circular of the Ministry of Corporate Affairs is there, which says please don't take any blanket approval कि 100 करोड़ 200 करोड़ तक आप चले गए. आपको नेटवर्थ देख लेनी चाहिए अपनी बैलेंस शीट की. आपकी नेटवर्थ है 2 करोड़ और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 100 करोड़ तक का ब्लैंकेट अप्रूवल में, तो ये रीजनेबल, ये लॉजिकल नहीं है. सो यू हैव टू सी दोज ओल्ड सर्कुलर्स आल्सो व्हिच आर इन कंसोनेंस विद सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि 134 की रिक्वायरमेंट है आपको डाल देना चाहिए. आपको डिस्क्लोजर डाल देना चाहिए क्या लिमिट्स हैं बोर्ड की, शेयर होल्डर की क्या लिमिट्स हैं, आपने बॉडी कॉर्पोरेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना प्रपोज किया है, प्रीवियस ईयर में कितना किया है आपने, आपके इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड गारंटीज और सिक्योरिटीज जो कि आपने लास्ट प्रीवियस ईयर में की हैं वो आपने क्या विद इन द लिमिट्स की हैं, ओवर द लिमिट्स की हैं. यू टू प्रोवाइड ऑल दोज डिटेल्स एंड डिस्क्लोजर इन योर बैलेंस शीट एज वेल. नाउ ये डिस्क्लोजर्स जो मैं आपको बता रहा था, ब्लैंकेट परमिशन में नॉट बी अवेलेबल टू यू, ये लॉजिकल नहीं है. बिकॉज आपका भी काम एज ए ऑडिटर यही है कि अगर कंपनी की नेटवर्थ को आप चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि 5 करोड़ की नेटवर्थ है, 100 करोड़ का ब्लैंकेट है, तो आप रेजोल्यूशन पे टारगेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन में क्वेश्चन कर सकते हैं आप. यू हैव ऑल द राइट, एंड आप अपनी ऑब्जर्वेशन में इस बात को दे भी सकते हैं कि एन ब्लॉक अप्रूवल शुड नॉर्मली बी अवॉइडेड एक्चुअली. सो ए रेजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड इन द जनरल मीटिंग इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन 186 दैट विल अप्लाई when a total amount up to which the board is authorized to give guarantee or make investment is governed by that particular resolution. So resolutions passed by the general meeting is really important when you're exceeding the
limit of 60% or 100%. These are, other requirements are there. Unanimous consent of all the directors of the board meeting is required. This is a very specific requirement. No requirement as such for prior approval of, PFI within the limit subject to no default of repayment of loans and interest thereon. So there must be a subsisting loan, subsisting anything. You should not be defaulter in that. You have to disclose in the balance sheet. And if that disclosure is not there, as an auditor, you should observe it and give it into your report as well. Now, there are restrictions also on the powers of the board. If these restrictions are related to the financial parameter, financial restrictions, under SEBI also restrictions, which provides, loans on the lower rate. 186 subsection 7 is very clear. आपको 1, 3, 5, 10 साल का टेन्योर लेना चाहिए और उसके आसपास का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निगोशिएट करना चाहिए, जो कि बोरोवर है आपका. गवर्नमेंट को और बाकी कंपनी को एग्जम्पशंस हैं. एग्जम्पशंस सेक्शन 186 की बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को या फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को है. इन सब कंपनी को एग्जम्पशंस 62(1)A में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ एग्जम्पशंस हैं. एनबीएफसीज को एग्जम्पशंस हैं. अगर कंपनी कॉन्ट्राविन करती है तो लाइक 185 5 लाख का और 2 लाख का आपका पेनल्टी है, कंपाउंडेबल है, आप कर सकते हैं. बट आपको विद इन द कैप कैसे रहना है अपने ऑडिट के लिए. आपकी ऑडिट ट्रेल फाइल के अंदर क्या क्या लगा होना चाहिए. बोर्ड का रेजोल्यूशन लगाना चाहिए, MGT 14 लगा होना चाहिए, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन होना चाहिए, MGT 14 होना चाहिए. एंड टाइम टू टाइम कितनी रिस्ट्रिक्शन आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी है, आपकी लिमिट, वो आपके पास पूरी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी ऑडिट ट्रेल के अंदर बिफोर crystallizing the figure in your balance sheet. So this is what the exemptions from the applicability of section 186 may be there. So now we may take questions, if any. Sumit ji and Asha ji. दीपक जी, कुछ एक दो क्वेरीज थी आई हुई, उनको Yeah, sure. लेने लास्ट डिस्कस हो गई थी हमारी. एक 7:05 PM की क्वेरी है. DPT 3 we provide the information of advance from supplier if it is more than 3. क्वेश्चन नहीं है, इसको लेने देते हैं. नेक्स्ट इज राजेंद्र जी की क्वेरी है. डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफ डायरेक्टर should be shown as loan to directors or advance paid to credit card company. इनफैक्ट जो ये आपने अमाउंट पे किया, मैंने बताया कि डायरेक्टर ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए उसका क्रेडिट का यूज कर लिया है. सपोज आप कहिए कि 1 लाख की लिमिट है, उसमें 90,000 तो आपने कंपनी के काम से लगाया, 10,000 अपने होटल के एक्सपेंडिचर दे दिए पर्सनल. तो आपको रिलेशन देखनी पड़ेगी, क्या वो इंसिडेंटल टू योर ऑफिशियल था या नहीं था. अदरवाइज वो रियम्बर्समेंट में आ जाएगा. अगर क्रेडिट कार्ड आपने यूज कर लिया तो इट मे नॉट अमाउंट टू लोन टू डायरेक्टर एक्चुअली. Is there any restrictions or specialization can cover where the lender company is availing working capital facility from bank and then giving loan to other companies? देखिए वहां पर तो बैंक का पैरामीटर आपका ट्रैप हो जाता है, क्योंकि बैंक जब आपको वर्किंग कैपिटल देगा तो किसी कंडीशन पर देगा, उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है. दैट इज अ बेसिक कंडीशन. कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है इस चीज को ना. Yes. कंपनी एक्ट अलाउ करता है, मतलब अलाउ करता है, बट आपको फिर सब्जेक्ट टू 185, 186 एंड yes. 73 देखना. Okay. Next is whether exemption notification dated 5th June 2015 is still applicable. Yes. This you have already told. I have been advised that after 7th May 2018, new provisions of section 185 are applicable and hence old notification is not valid. Just wanted to confirm. This is also Yes, sir. why, because Very well. reframing of largely section 185 was reframed. That is why there is a confusion that all the provisions of earlier notifications are failed. But still, आज भी अगर देखें तो 2015 का notification चल रहा है. Yes, yes, this is very much valid. In fact, we have also used this Yes. benefit of this. सबसे ज्यादा हम वही देखते हैं जून 2015. So queries, we have only this much queries. If anyone else have any other query, they can post it immediately in another 30 seconds or so, because we are already past 7:30. Sumit ji, are you there?
Yes, madam. Yes. We have taken all the queries. Mhm. I think for vote of thanks, up. Very nice. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता था? एक लास्ट चांस दीजिए सबको. हाँ, लास्ट चांस है अगर कोई पूछना चाहता है बिफोर कंक्लूडिंग द टुडे सेशन. And wonderfully, sir, you have covered entire thing Very practical one. with practical note. हाँ, कुछ 4-5 ऐसे एग्जांपल्स थे. मैं चाहता तो इसको, मैंने हमेशा इसको रिपोर्ट को ऐसा चाहे बिकॉज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट. हम ऑडिट में जा रहे हैं, हम फोर्थ कमिंग अपने फाइनेंशियल को क्लोज कर रहे हैं. तो इसको आपने बहुत अच्छा सुमित जी, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना बिकॉज बैलेंस शीट को लेकर इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भाई किस फिगर को कैसे लिया जाए. आप हमेशा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे नहीं जा सकते, आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है फाइनेंशियल फिगर को. तो वो सब कुछ आपको कवर अप करना पड़ेगा. और सबसे ज्यादा दुखदाई सेक्शंस आपके सेक्शन 185 186 है. Yes, yes. सुरेश जी कह रहे हैं कि सर को बार बार इनवाइट कर सकते हैं. दिस सेशन वाज एक्सट्रीमली फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच सर. सर मैं सुमित जी के लिए तो हमेशा 24/7 रहता हूँ ऑफिशियली, हमेशा अवेलेबल हूँ. ऑलवेज थैंक. अमरेंद्र जी का एक क्वेश्चन आ रहा है बीच में. प्लीज डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट एज LLP इज बॉडी कॉर्पोरेट. As you said, loans to LLP is not attracted. Section 185. Yes, ये मैंने जैसे बताया कि जहाँ LLP आ गई वहां पे आप दोनों को, लेंडर को और बोरोवर को LLP बना दो. राइट. एक मैंने एग्जाम्पशन बताई थी, तो उसमें दोनों को अगर आपने LLP बता दिया, प्रीव्यू से बाहर हो जाते हैं. क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ लीजिए. Questions और नहीं, बस यही है सर. यही था सर. Only this. So with this, thank you so much sir for your wonderful time, and recording shall be shared along with the PPT to each participant. And thank you Asha ji for wonderful moderation. Thank you Deepak sir for your wonderful. थैंक यू सुमित जी. आज एक फॉर्चुनेटली मेरे 598 कंप्लीट हो गए हैं. ओके. वेबिनार्स. ओके. 2 और बचे हैं मैजिकल 600 से. फिर मैं 700 की फिगर में जाऊंगा, फिर 800 की, फिर 900 की, फिर थोड़ा बुढ़ा हो जाऊंगा तो 1000 की में जाऊंगा. राइट. तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे क्योंकि टॉपिक की कवरेज जो होती है ना सर बहुत अच्छी है सर. बहुत अच्छा सेशन रहा. नमिता जी बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए. कासा का एक ऑडिट हेल्प डेस्क भी क्रिएट किया हुआ है, आप वहां भी अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं. यस तो आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर मिलेगा. यस वी विल शेयर द लिंक टुमारो. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा. हाँ, कोई भी क्वेश्चन आपको भेजें और आप मुझे दे दें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी भी सॉल्व हो जाएगा बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग टाइम है सर. श्योर. So with this sir, thank you once again. Deepak sir, thank you, and thanks to all participants. Thank you everyone. Thank you Asha ji. Thank you so much. Thank you everyone. और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर. Thank you.